Good evening, everyone. Let's start new concept today. That is animal tissues, grade 9 NCERT. Okay. So before moving further, let's see the outline of the concept. Okay. So here is bit overview so that it becomes easier for you to understand the concept. Animal tissues are broadly categorized under epithelial tissue, muscular tissue, connective tissue, and nervous tissue. Okay. So first of all, we will study epithelial tissues only. Okay. First of all, we will study epithelial tissues. Okay. So let's study animal tissues. So when we breathe, we can actually feel the movement of our chest, right? The movement of chest we can feel. Okay. How do these body parts move? For this, we have special cells called muscle cells. Okay. You know that when you inhale, diaphragm contract and relax. Okay. In order to rush the water inside the lung. Okay. Or to exhale water, exhale air out. Okay. Exhalation and inhalation of the air. Okay. Diaphragm, which is a muscular membrane which contract and expand. Okay. So what is the main job of the muscles? That is contraction and expansion. Okay. So here you can see few smooth muscles, and if you see one single cell, okay, this is your simple smooth muscle fiber. Okay. And do see the diagram very carefully, because sometimes picture identification come in exam. Okay. Lot of time, I would say. Okay. They can ask you identify the cell, and also tell the location of the cell where it is found. Okay. Next is, during breathing we inhale oxygen. Where does the oxygen go? It is absorbed in the lungs and then it transported to the body cells through the blood. ठीक है. सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनहेल करते हैं एयर को. ठीक है. This air enter in our lung alveoli. From the lung alveoli there is constant exchange of gases. ठीक है. क्योंकि जिस एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या रिच होता है, ऑक्सीजन रिच होता है. तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज देयर. Okay. What is law of concentration says? Ki always a substance, okay, during diffusion of the gases move from high concentration to लो concentration. तो तुम्हारे लंग एल्वुलर से ऑक्सीजन इधर भागता है क्योंकि तुम्हारे ब्लड में, ओके, जो हीमोग्लोबिन है which is rich in carbon dioxide, that will try to get rid of the CO2. तो CO2 यहाँ से कहाँ भागेगा, लंग एल्वुलाई में, and when you exhale out CO2 will come out. ठीक है. Why would cells need oxygen? लेकिन सेल को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि सेल ऑल्सो परफॉर्म सेलुलर respiration. Okay. And during cellular respiration ATP is produced, so the production of the energy and to do various activities in the cell require energy. Okay. Even if you're sleeping, then also your body cells are working. Okay. The function of mitochondria we studied earlier provide clue to this question. Okay. Already they have given you the clue. Blood flows and carries out various substances from one part of the body to the other. Okay. Now blood is known as the कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्यों? एक तो ये फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, एयर और गैसेस को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और तुम्हारे वेस्ट को भी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. सो it's connecting all the body parts together. ठीक है. That's why it is also called connective tissue. It also collect the waste from all part of the body and carries them to the liver and kidney. ठीक है. Liver also. So your thoughts for today is, you will let me know tomorrow how liver help you to excrete substances. ये मैं पूछूंगी कल आपसे, तो jot down कर लो नोटबुक में. ठीक है. Blood and muscles are both examples of the tissues found in the body. On the basis of the function they perform, can think of different type of animal tissues. ठीक है. अब हम एनिमल टिश्यूज को डिवाइड कैसे करते हैं, उनके फंक्शन के बेसिस पे. ठीक है. तो फंक्शन के बेसिस पे कितने एपिथेलियल कितने टिश्यूज हैं? फर्स्ट इज योर एपिथेलियल टिश्यू, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue. In the flow diagram also we have seen the same. Apical, epithelial, muscular, connective, nervous. How? Depending upon the
फंक्शन वी क्लासिफाई, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। Okay, now epithelial tissues, the covering of protective tissue in the animal body are epithelial tissues, ठीक है। हर एक बॉडी ऑर्गन एक लेयर में, एक थिन लेयर में पैक रहता है। क्यों? ताकि वो दूसरे ऑर्गन से एक तो डायरेक्ट टच में ना रहे, और दूसरा उसका एक पैकेजिंग मटेरियल हो। जब भी तुम किसी ऑर्डर को प्लेस करते हो किसी भी वेबसाइट से, ठीक है, उसमें एक बबल रैप होके आता है ना, ठीक है। ये बबल रैप का काम जो है वो तुम्हारे एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। एक तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग भी है, और दूसरा पैकेजिंग मटेरियल भी है। जैसे तुम किसी चीज को पॉलिथीन, अलग अलग पॉलिथीन में कैटेगराइज करके रखते हो, ठीक है। अब तुम देखोगे अपनी चेस्ट कैविटी में लंग्स, हार्ट, ब्रेन, ठीक है, वो सारे एक कवरिंग में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज कवरिंग ऑफ लंग्स कॉल्ड? Outer covering of lungs called what? If anyone knows the answer, let me know in the chat box. There is a specific name to the brain covering also. And lot of times in competitive exam, these questions are asked whenever you will find NEET or JEE. Okay, तो ये क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। कवरिंग ऑफ लंग्स, कवरिंग ऑफ ब्रेन, व्हाट इट इज कॉल्ड? Pleura is the covering of lungs. Very good. Okay. And what is covering of brain called? That you let me know tomorrow. Okay. This is your homework. This hot is homework. But covering of lungs is called pleura. And you have read it in 7th grade. ठीक है, तो पीछे का भूलना नहीं है। Good. Next is epithelium covers most organs and cavities within the body. It also forms the barrier to keep different body systems separate. That's what I explained you now also. ठीक है। हाँ, नो नो नो, meninges are not the covering of the brain. meninges are जो तुम्हें अखरोट की तरह डिफरेंट लेयर्स दिखते हैं ना ब्रेन में, उनको meninges बोलते हैं। और जितना तुम अपने दिमाग को यूज करते हो उतना ही meninges गहरी होती रहती है, ठीक है। ये नहीं है इसका आंसर, इशिता। सर्च करो, देन लेट मी नो टुमारो। अभी सेशन पे फोकस करो। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ एंड द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, लंग एल्वेलाई एंड द किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। जो तुम्हारे लंग्स की कवरिंग है, व्हाट इज द लंग कवरिंग? प्लूरा, दैट यू सेड मी जस्ट नाउ। ओके, then your kidney covering also, epithelial tissue cell are tightly packed and form the continuous sheet, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्ट पे ही होंगे, प्रॉपर एक शीट होगी जिसमें वो ऑर्गन कवर रहेगा। ओके, दे हैव ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम एंड मोस्ट नो सेलुलर स्पेस, ऑब्वियसली, ठीक है। अब व्हाई दीज आर नॉट दैट मच थिक? क्योंकि अगर थिक होंगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस विल टेक लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ द एपिथेलियम, सिर्फ एक ही लेयर इनफ है, ठीक है। एज अ रिजल्ट द परमेबिलिटी ऑफ द सेल्स वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये लेयर इतनी थिक नहीं है क्योंकि परमेबिलिटी इज अ हाई कंसर्न, क्योंकि थिक लेयर हो जाएगी, सब्सटेंसेस को अंदर बाहर जाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये सिंगल लेयर वाले सिस्टम है, ठीक है, एपिथेलियम, ठीक है, इजिली चीजों को अंदर बाहर आने देता है, ठीक है। regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. अब चाहे कोई भी लेयर है, वो किसी ना किसी लेयर पे तो रेस्ट करेगी ना, ठीक है, कोई तो बेसमेंट चाहिए उसे जिसपे वो रेस्ट कर सके। तो अगर तुम यहाँ पे देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में ये जो ब्लू वाला सिस्टम है ना तुम्हारा, दिस इज इट्स रेस्टिंग मेम्ब्रेन। यहाँ पे भी तुम इसको देखोगे, ये ब्लू वाला। Now next is different epithelia show different structure that correlate with unique functions. For example, in cell inner lining blood vessels,
lung alveoli, where transportation of the substance occur through selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. ठीक है, तुम्हारे ब्रेन में, ब्लड वेसल्स में, जहाँ पे इजिली ट्रांसपोर्ट होगा चीजों का, वहां पे सिंगल लेयर होती है एपिथेलियम के. ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम. स्क्वामस मीन विच लुक लाइक स्केल्स ऑफ फिश. अगर तुम इसको देख रहे हो, इस सेल को देख रहे हो, ठीक है, ये फिश स्केल्स की तरह दिख रहा है तुम्हें. ठीक है, स्क्वामा मतलब स्केल्स, फिश स्केल्स की तरह दिखता है. ठीक है, लैटिन वर्ड है ये. सिंपल मतलब एक सिंपल लेयर है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो तुम्हें डिफरेंट लेयर्स दिख रही हैं. स्ट्रेटा, ठीक है, सबस्ट्रेटम. ठीक है, स्ट्रेटा वर्ड तुमने बहुत जगह पढ़ा होगा, इवन ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा. ठीक है, स्ट्रेटा का मतलब होता है लेयर. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. स्क्वामस क्या था तुम्हारा? सिंपल स्क्वामस था. ठीक है, जब उसकी डिफरेंट लेयर्स बन गई, ठीक है, देन इट विल बी कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस. ठीक है, depending upon the shape. Now this cell is looking like a cube, so it will be called a cuboidal. Okay. Now it will look like column. Okay, these long elongated, so that's why it is called columnar. Okay, these are the types of epithelial cells: squamous, cuboidal, columnar, ciliated, and glandular. Okay. Okay. Okay, let's continue now where we were. हाँ. So skin, simple squamous epithelial cells are extremely thin and flat and form delicate lining. ठीक है, जो तुम्हारे internal organs में एक single lining होगी वो बहुत ही delicate होगी. The esophagus and the lining of the mouth also covered by the squamous epithelium. ठीक है, squamous epithelium की वजह से ही होगी वो simple lining. ठीक है, now these locations are very very important because sometimes they can ask you squamous epithelium where you will find, columnar epithelium तुम्हें कहाँ मिलेगा, ciliated epithelium तुम्हें कहाँ पे मिलेगा, they can ask you. ठीक है, skin epithelial cells are arranged in many layers. Just now we have read stratified. स्किन में एक थिन लेयर नहीं होती है, नहीं तो तुम चलते खरोंच लगती है और ब्लड ही ब्लड बाहर आता. ठीक है, जो तुम्हारी स्किन होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है. ठीक है, इस वजह से तुम्हारी जो स्किन है तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, and skin is the largest organ of the body also. Okay, it's a sense organ which is largest organ of your body. Okay, where absorption and excretion occur as in inner lining of the intestine. Tall epithelium cell present this columnar epithelium, pillar like columnar epithelium, just we have read, ऐसे column की तरह दिखेगा. ठीक है, facilitates movement across the epithelial barrier. In this respiratory tract, the columnar epithelium tissue also has cilia. ठीक है, अब columnar tissue तो है, अगर उसके ऊपर cilia लग गए, ठीक है, मतलब cilia मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, और वो कहाँ पे होगा? तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा. cilia ऐसे मूव करते हैं. ठीक है, ऐसे वे में. ठीक है, क्यों? क्योंकि when you will inhale, ठीक है, there will be lot of dust particles that will be coming inside, तो वो वाइब्रेट होके जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको बाहर फेंक देते हैं. ठीक है, these cilia can move and their movement pushes mucus forward to clear. ठीक है, म्यूकस जो तुम्हारे नाक से निकलता है सर्दियों में, गीला गीला व्हाइट व्हाइट सुंदर सा, दैट इज कॉल्ड म्यूकस. ठीक है, म्यूकस ऑलवेज इट इज देयर इन द नोज. ठीक है, जब जुकाम होता है तब तो ऑब्वियसली हैवी क्वांटिटी में आता है. ठीक है, बट म्यूकस तुम्हारे नोज में रहता ही है, सो दैट वेन एवर यू इनहेल, जो भी बैक्टीरिया वायरसेस तुम इनहेल कर रहे हो वो म्यूकस में ट्रैप होके ही मर जाए. ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल क्यूब की तरह होगा. ठीक है, शेप पे, वर्ड्स पे ध्यान दो. ठीक है, बायोलॉजी की ये ब्यूटी है कि जो तुम देख रहे हो वही तुम्हें लिखना है. ठीक है, cube shaped cells forms lining of the kidney tubules and ducts of the salivary gland. salivary gland बेटा जहां से तुम्हारा माउथ का सलाइवा निकलता है, लार निकलती है. ठीक है, ड्रूल और थूक. ठीक है, where it provides the mechanical support. epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells. अब कुछ क्यूबॉइडल epithelial cells जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं बेटा,
या तो वो अपने अंदर कुछ स्टोर करके रख देते हैं, कुछ हॉर्मोन्स या कुछ, ठीक है, या फिर वो कुछ रिलीज करते हैं, ठीक है। ग्लैंड का फॉर्म लेते हैं। ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक ऑर्गेनल है और एक ऑर्गन है जो कुछ सक्रीट करता है, फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स, ठीक है, या फिर कोई कैटलिस्ट, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? ब्लड है, ठीक है। ब्लड इज द टाइप ऑफ अ connective tissue. Why would it will be called connective tissue? This is a very strong question asked lot of time in exam also. A clue is provided in introduction in the chapter, ठीक है, तुमने पढ़ा होगा इसको, ठीक है। कनेक्शन करता है किसमें? क्योंकि डिफरेंट चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल गैसेस, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट मैटर, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट फूड आल्सो, क्योंकि तुम्हारे इंटेस्टाइन में विली होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद जो तुम्हारा फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, फिर वो सेल्स तक पहुंचते हैं, पूरी बॉडी के लिए ट्रांसपोर्ट होते हैं। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड डेंस एंड रिजिड। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन concordance with the function of the particular connective tissue, ठीक है। ये रही तुम्हारी ब्लड सेल्स, ठीक है। ये रही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का फोटो नहीं दिया यहाँ पे। डब्ल्यूबीसी बेटा इरेगुलर दिखती है शेप में, अमीबा की तरह, ठीक है। ये तुम्हारे प्लेटलेट्स हैं, लिम्फोसाइट, ठीक है, हेलाइन मैट्रिक्स, कॉन्ड्रोसाइट, दीज आर पार्ट ऑफ योर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। तुम्हारी आरबीसीज बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है। ये एडिपोसाइट है, एडिपोज टिश्यू में होता है, एडिपोज टिश्यू जो फैट स्टोर करता है, ठीक है। तो ये फैट स्टोर हुआ, फैट का ड्रॉपलेट है इतना बड़ा ये, फैट ड्रॉपलेट, ठीक है। ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, in which red blood cells RBCs, white blood cells WBCs, platelets are suspended. The plasma contains protein, salt, and hormones. Blood flows and transport gases, digest food, hormones, and waste materials to different parts of the body. That's why it is called connective tissue. Bone is another example of the connective tissue. What it connects? It connects different bones, different muscles. It helps in the movement. Okay. It also anchors the muscles and supports the main organs of the body. It is a strong, non-flexible tissue. Okay. Bone cells embedded in the hard matrix. Okay, that are composed of calcium and phosphorus components. ठीक है। बोन्स किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फोरस से ही बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. Okay. L, B, B, T, M, B. Remember this mnemonic code. This will help you to, recall the thing. Science is 99% learning, understanding of the concept, 1% cramming. ठीक है। इतना सारा कंटेंट को एकदम से रिकॉल करना बहुत मुश्किल होता है। सो निमोनिक कोड्स विल हेल्प यू टू रिकॉल द थिंग्स। LBB, लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन, ये याद रखना है। अगेन आई एम टेलिंग, LBB, TMB, ligament connect bone to bone, tendon connect muscle to bone, ठीक है। Another type of connective tissue, cartilage, has widely spaced cells. The solid matrix is composed of protein and sugar. तो ये पूछा जा सकता है कि कार्टिलेज किससे बना होता है? प्रोटीन एंड शुगर से बना होता है, ठीक है। कार्टिलेज क्या है? एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है जो कहाँ पे पाया जाता है? तुम्हारे टिप ऑफ नोज में, दो बोन्स के बीच में भी, एज अ डिस्क, इवन इन योर वर्टिब्रे ऑल्सो, ठीक है, एंड इवन इन बिटवीन योर नीज ऑल्सो, ठीक है। दो बोन्स के बीच के फ्रिक्शन को कम करना है तो वहां पे एक लुब्रिकेंट होता है, प्लस एक कार्टिलेज होता है ताकि बोन्स का डायरेक्ट टच ना हो,
ठीक है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को पूरी लाइफ यूज करते हैं, तो इन ओल्ड पीपल यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड उनके घुटने बहुत दुखते हैं, वो इसलिए दुखते हैं, एक तो कार्टिलेज घिस गया होता है, दूसरा लुब्रिकेशन भी खत्म हो गई होती है। ठीक है, तो कार्टिलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है बॉडी का। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड बोन मैरो। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा बबल रैप होके आता है, उसमें छोटे छोटे एयर के वो बबल्स होते हैं जिसको तुम पॉप करते हो। ठीक है, तो वैसे ही एक एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल, स्किन और मसल के बीच में होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, अगर तुम्हारा ये तुमने ऑब्जर्व किया होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, एल्बो वाला हिस्सा और नी वाला हिस्सा कभी किसी जगह पे लग जाए, ठीक है, स्पेशल जब तुम बेंच से बाहर आते हो क्लासरूम में, ठीक है, कभी घुटना लग जाए, कितना दर्द होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घुटने के पास और यहाँ एल्बो के पास एक डायरेक्ट एक्सपोज्ड नर्व होती है। ठीक है, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, तो जैसे ये सीधा लगेगा, बहुत जोर से दर्द होता है। ठीक है, तो यही यहाँ इसका कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, कि अगर एरियोलर टिश्यू की कुशनिंग नहीं होगी तो तुम्हारी मसल्स डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, मसल इंजरी हो सकती है। ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है बेटा। लैक्टिक एसिड क्यों बनता है? जब तुम दौड़ते हो, हैवी एक्सरसाइज करते हो, तो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। ठीक है, और सेल फटाफट कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना देती है। ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जब ग्लूकोज टूटता है, ठीक है, ग्लूकोज टूटता है तो वो लैक्टिक एसिड बना देता है, और लैक्टिक एसिड के क्रिस्टल तुम्हारे मसल में जमा हो जाते हैं, और वो कांटों की तुम्हें तरह तुम्हारी मसल्स में चुभते हैं। ठीक है, तो इसके रिलीफ के लिए तुम हॉट बाथ ले सकते हो और मसाज भी कर सकते हो ताकि ये क्रिस्टल डिसॉल्व हो जाए। पानी पियो और लंबी सांस लो ताकि ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाए और वो डिसॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ elongated cells also called muscle fibers. These tissues are responsible for the movement in our body. ये तो ऑब्वियस है, मसल्स हैं तो मूवमेंट करेंगी ही। ठीक है, अब ये जो तुम्हारी मसल्स होती हैं वो स्पेशल प्रोटीन से बनी होती है जिनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्ट होने का। प्रोटीन का क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब ऐसे ही कोरिलेट करके कॉन्सेप्ट को पढ़ा करो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। ठीक है, दीज आर द फंक्शन ऑफ द मसल्स ओनली। ठीक है, अगर तुम एक मसल फाइबर को ऐसे स्ट्रेन करके अंडर माइक्रोस्कोप देखोगे तो तुम्हें ऐसे स्ट्रेशंस दिखेंगे, ऐसे लाइंस दिखेंगी। ठीक है, ठीक है, मसल फाइबर्स आर ऑफ थ्री टाइप्स का, स्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। ठीक है, वी कैन मूव सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। ठीक है, अब जो मसल्स को तुम अपनी विल से मूव कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल हैंड की मसल्स, ठीक है, अपनी विल से तुम मूव कर पा रहे हो। ठीक है, बट क्या तुम्हें अपनी आईज ब्लिंक करने के लिए सोचना पड़ता है, ओहो मैंने आईज ब्लिंक नहीं की 1 घंटे से, मैं ब्लिंक कर लेता हूँ? ऐसा नहीं होता। ठीक है, दीज आर इनवॉलंटरी मसल्स, तुम्हारे कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आईज खुली भी रखते हो, थोड़ी देर में पानी आ जाएगा आंखों में। ठीक है, तुम्हें वो ब्लिंक करनी पड़ेगी। These muscles are also called skeletal muscles as they are most attached to the bones and help in body movement. Under the microscope, these muscles show the alternate light and dark bands. जो मैंने अभी तुम्हें बताया, एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है, एक डार्क बैंड है, एक लाइट बैंड है। ठीक है, ये मसल्स लॉन्ग होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं, ठीक है, सिलिंड्रिकल होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ द फूड इन एलिमेंट्री कैनाल, ओके, जिसको तुम क्या बोलते हो, कौन सी मूवमेंट होती है, ये मैंने पढ़ी थी डाइजेस्टिव सिस्टम में, ऐसे बॉल बनता है फूड का, तो इसोफेगस में फूड की ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। मूवमेंट ऑफ फूड इन द इसोफेगस, सब भूल गए हो पीछे का है? माय क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ bolus of food in esophagus digestive tract is known as what?
जल्दी दो आंसर, कल बताना सर्च करके, पीछे का सब भूलते जा रहे हो। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम फ्रॉम, कितने किया आंसर। ओके, some are involuntary movements also. We cannot really start them stop simply by waiting to do so. Smooth muscles or involuntary muscles control such movements. They also found in the iris of the eye. ठीक है, इवन आइरिस भी तुम्हारी वो लाइट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होती है। सडनली कोई आए और तुम्हारी आंखों में टॉर्च पॉइंट आउट कर दे, क्या होगा तुम्हारा इमीडिएट रिएक्शन, क्या होगा, तुम ऐसे करोगे या ऐसे करोगे। ठीक है, क्यों करोगे, तुम्हारी जो प्यूपिल होगी, ठीक है, वो अपना साइज स्क्वीज कर लेगी। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो तुम्हारे इनवॉलेंटरी मसल है, उसके लिए तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। द मसल्स ऑफ द हार्ट show the rhythmic contraction and relaxation through the life. These involuntary muscles are called the cardiac muscles. Heart muscle cells are cylindrical, branched and uninucleate. एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नर्वस टिश्यू। किसी का कमेंट आया है, यस, मूवमेंट ऑफ फूड इन द यूसोफेगस आया हुआ। हाँ, पेरिस्टालसिस, बहुत लेट से याद आया, पेरिस्टालसिस, गुड। ठीक है, गुड। Next is all cells possess the ability to respond to the stimuli. However, the cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated. ठीक है, स्टिमुलस क्या है बेटा, ऐसा इंफॉर्मेशन है जो तुम एनवायरमेंट से रिसीव करते हो। स्टिमुलस कैन बी लाइट, इट कैन बी हीट, इट कैन बी वाटर ऑल्सो। ठीक है, स्टिमुलेट स्टिमुलस के लिए रिएक्ट करना, ठीक है, वो किसका काम होता है, नर्वस सिस्टम का काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, खाना बना रहे हो, गलती से गरम कढ़ाई में हाथ लग जाए, फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, फटाफट हाथ विड्रॉ कर लेते हो। ठीक है, वो क्या है, स्टिमुलस है, किसके लिए, हीट के लिए। ठीक है, इसके लिए ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है, इसमें काम करता है तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि जब तक ब्रेन में मैसेज आएगा, ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा, तुम्हारा हाथ जल चुका होगा। ठीक है, तो स्टिमुलस रिएक्शन होता है। द सेल्स ऑफ द टिश्यू ऑफ द नर्व सेल्स आर कॉल्ड द न्यूरॉन्स। ठीक है, दो वर्ड्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन किडनी में मिलता है बेटा, न्यूरॉन ब्रेन में मिलता है। ठीक है, अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी which nucleus and cytoplasm. ठीक है, with the nucleus and cytoplasm. From the long thin hair-like part arise. Usually, a neuron has a single long part called the axon, many short branches part called the dendrils. ठीक है, तो ये पढ़ लेना है अच्छे से, कहीं बार आ जाता है, draw and explain the structure of neuron. ठीक है, यूजुअली तो हमारे टाइम पे तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही था। ठीक है, द सिग्नल दैट पासिस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड द नर्व इम्पल्स। ठीक है, अब जैसे ये तुम्हारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको डेंड्राइट बोलते हैं, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये तुम्हारा एक्सॉन है, ये तुम्हारी नर्व एंडिंग है। इस नर्व एंडिंग पे दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा। ठीक है, उनके बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होगा, यहाँ से ये यहाँ इंफॉर्मेशन कैसे भेजेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल की वजह से। ठीक है, माई हॉट क्वेश्चन टू यू इज दैट कि तुम्हारा ब्रेन कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एक दिन में। ठीक है, तुम्हारा ब्रेन एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, कल मैं पूछूंगी। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। ठीक है, the functional combination of the nerve and the muscle tissue fundamental most animals. This combination enables the animals to move rapidly and response to the stimuli. ठीक है, और ये जो मसल्स का और ये जो नर्व्स का कॉम्बिनेशन है, ये सभी एनिमल्स में रिएक्ट करने के लिए हेल्प करता है, किसके लिए, स्टिमुलस के लिए। ठीक है, so that's all about the chapter. If you have any doubt, you can ask